Hello everyone and welcome to your channel Physics class. So today we are going to discuss about force and laws of motion. Certain exercise questions were left. Some up to question number 6 of this chapter we have already discussed, and now we will discuss the remaining questions. We will try to solve it. And this question number 7, it's a very important question, and here I have tried to just imagine the things or draw a picture of the things which are given in the question. This is a train, okay, a train consisting of 5 wagons and an engine. Okay, engine have a mass of 8,000 kg. The engine pulls the wagon, you know already. So the force applied by the engine is how much given? It is 40,000 Newton. 40,000 Newton is the applied force by the engine to pull the wagons. That means engine applied a force of 40,000 Newton on all the, that means on these wagons. Okay, now each wagon have a mass of 2000 kg. Got it? हर एक वैगन का मास कितना है? 2000 किलो. ठीक है, 2000 kg. सो इसमें एक और चीज़ है दिया है हमको कि जब ट्रैक और जो व्हील है वैगन्स का, उनके बीच एक फ्रिक्शनल फोर्स होगा, एंड दैट फ्रिक्शनल फोर्स दिया गया है 5000 न्यूटन. ओके, सो 5000 Newton is the what? Frictional force, and 40,000 Newton is the applied force, isn't it? So the net force, there must be a net force. Okay, so given things are, first of all, I given mass of each wagon m is equal to how much? 2000 kg. Then frictional force, applied force, first of all, applied force, capital F I have denoted it by 40, it is given 40,000 Newton. And then frictional force, I have denoted it by small f. Okay, it is how much? It is 5000 Newton. Okay, now the question have been asked that what is the first question? There are 3 questions in this. So first question is, how much accelerating force is acting on the wagons? Okay, due to the applied force by engine. मतलब कि इंजन ने 40,000 फोर्स अप्लाई किया है, तो एक्सेलरेटिंग फोर्स कितना होगा, मतलब नेट फोर्स कितना होगा, इफेक्टिव फोर्स कितना होगा. बिकॉज इसमें देखो कुछ फोर्स तो खर्च हो जाएगा, मतलब 5000 न्यूटन तो खर्च हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करने के लिए. समझ में आ रहा है मेरा बात? तो रिमेनिंग फोर्स तो हम लोग पहले क्या करेंगे? नेट फोर्स, नेट फोर्स और नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स यू कैन राइट. हाँ, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स F, suppose A, okay, is how much? Accelerating force F is, it is given it will be 40,000 minus 5000 Newton. Okay, so it will be how much? 35,000 Newton. So this much is the accelerating force will be acting on the wagons, okay, by the engine. Now next question have been asked that what will be the acceleration of the train? Okay, the next question is, what is the acceleration of the train? So we have found the force, we know the mass, we can find the acceleration. How? See, सभी सेकंड क्वेश्चन, हाँ, सभी वैगन्स का मास कितना है? 2000 kg, 2000 kg, 2000. So total mass of all the wagons is equal to, इसको मैं डिनोट करता m से, कितना हो जाएगा? हर एक का 2000 है, और कितना डब्बा है इसमें ट्रेन में? हाँ, 5 डब्बा. ठीक है, 2000 into 5, are you getting? kg. So it will be 10,000 kg. ठीक है, 10,000 किलो इसका क्या है? नेट मास है, मतलब पूरा मास है वे सारे वैगन्स का, इंजन का छोड़ दो. ठीक है, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? क्योंकि फोर्स किस पे अप्लाई हो रहा है? इन सारे पे, डब्बों पे. ठीक है, वैगन्स पे अप्लाई हो रहा है.
इंजन तो फोर्स अप्लाई कर रहा है, उससे हम लोग डील नहीं करेंगे, मतलब ये इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है. वी नो दैट द accelerating force Fa will be how much? M into A. Apply Newton's second law of motion. From here, what you will be able to find is that acceleration. How much acceleration? How much is the acceleration of the train? That we are going to find. So you cross multiply M to this side. What you get? Acceleration is equal to Fa upon M. Okay. Fa is how much? Fa we have found it as 35,000 Newton upon mass is 10,000 kg. So 10,000 kg. So ultimately this cut it. What you get? That 2 7, and here you will get a much so if you cut it and divide it, what you will get? You will get 3.5 meter per second square. So this is the acceleration of this train. This is the acceleration of the train due to an applied force of 40,000 Newton and a net accelerating force of 35,000 Newton. So the next question is this third part of this question number 7 is that how much force wagon 1 exert on wagon 2. Okay, for that what we will do, we will हमें पता करना होगा कि ये चारों वैगन्स पे कितना टोटल इनका टोटल मास कितना है, इन 4 वैगन्स का टोटल मास कितना है. ठीक है, जिसके ऊपर वैगन 1 ने फोर्स अप्लाई किया है. ठीक है, फोर्स किधर अप्लाई किया है? फोर्स ऐसे पुल हो रहा है. ठीक है, तो वो फोर्स कितना है तो हमको जानना पड़ेगा, बिकॉज फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन हमको पता है, देखो एक्सेलरेशन तो सेम ही होगा ना सारे वैगन्स का या फिर इंजन का. ठीक है, कितना है? 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आई डोंट नो व्हाट इज दैट मास. सो मास तो पता ही है सभी का, 2000 2000 2000 2000 4 टाइम्स. सो एक्सेलरेशन, आई मीन हियर आई हैव टू फाइंड व्हाट? द फोर्स अप्लाइड बाय वैगन 1 on वैगन 2 इज इक्वल टू कितना होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन. ठीक है, लेकिन मास क्या होगा यहाँ पे? मास यहाँ पे डिफरेंट कितना होगा? टोटल मास 4000, आई मीन 2000 इंटू, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, इट विल बी 2000 kg. एक का 2000 कितना? 1 2 3 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया. So 4 to 8,000 kg into acceleration. We have already found it, 3.5 meter per second square. So if you simplify this, how much you will get? 8,000 into 3.35 by 10. So if you divide it by 10, 10 will be got cancelled out. So 800 into 35, it will be it will be 28,000 Newton. So this much force is applied by wagon 1 on wagon 2 3 4 and 5 और wagon 2. एक ऑटोमोबाइल है. ठीक है, एक व्हीकल है जिसका मास है 15,000 गिवन. मास ऑफ द व्हीकल इज हाउ मच? इट इज गिवन 1500 kg. Okay, 1500 kg is the mass of the vehicle, and that vehicle is moving on a road, suppose. Okay, how much force of friction is required so that the vehicle will stop? Okay, if the negative acceleration, that means retardation दिया है यहाँ पे. retardation कितना है? टायर, मतलब negative acceleration of what? of the vehicle is given how much? That means it is given 1.7. So acceleration, negative acceleration or retardation, I am writing it retardation.
retardation is also denoted by A, and it is 1.77, I think 1.7 meter per second square, 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट एक चीज़ यहाँ पर क्वेश्चन में भी बोल दिया है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है। रिटार्डेशन क्या होता है? नेगेटिव होता है ना, नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब बी एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे साइन नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। मुझे फाइंड करना है कि कितना फ्रिक्शनल फोर्स चाहिए सो दैट द व्हीकल विल स्टॉप। ओके, तो स्टॉप हो जाएगा मतलब फाइनल वेलोसिटी कितना, फाइनल वेलोसिटी सपोज v इज 0, वो तो 0 हो जाएगा ना। तो मुझे फाइंड करना है क्या कि फ्रिक्शनल फोर्स, और रिटार्डिंग फोर्स कितना है, F, स्मॉल f, स्मॉल f इज इक्वल टू व्हाट, वी नो दैट फोर्स F इज इक्वल टू क्या होता है, m है, वही फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पे भी। द फ्रिक्शनल फोर्स इज m इंटू डी एक्सेलरेशन, सो m इज 1500 kg into the acceleration is minus 1.7 meter per second square. If you multiply it, you will get the answer. Okay, so it will be so minus 2550 Newton will be the net, it will be the frictional force which will be acting between the tire and the tire of the vehicle and the road, so that the vehicle will stop, okay, in certain time. Question number 8 is asked that what is the momentum of an object whose mass is m and velocity is v. You know that momentum formula of linear momentum T is equal to क्या होता है, m into b. This will be the formula. Okay, we have already studied this in the chapters explanation part. Next, question number 10. It is given in that question it is given that using a horizontal force of 200 Newton we intend to move a wooden cabinet across a floor at a constant velocity. अच्छा, what is the force of friction that will be exerted on the cabinet? कोई कैबिनेट मतलब कोई ब्लॉक है मान लो, ठीक है, इस टाइप का, जिसको फ्लोर पे मुझे मूव करवाना है, ठीक है, उसको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवाना, और फोर्स कितना लगाना है, 200 न्यूटन, ठीक है। फोर्स 200 न्यूटन लगाने से वो मूव कर पाएगा। सो पूछा क्या है कि फ्रिक्शनल फोर्स, व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा इसके बीच। देखो ये कोई कैबिनेट है, चाहे वट एवर इट इज़, इफ़ यू वांट टू मूव दिस ऑब्जेक्ट, ओके, बाय अप्लाइंग ए फोर्स, देन your force must be able to overcome the frictional force small f, and f is how much, 200 न्यूटन। 200 न्यूटन तो फोर्स अप्लाई करोगे तो इस ब्लॉक के मतलब ब्लॉक और सरफेस के बीच कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट होगा। ओके, अच्छा, वो भी पूछा है, और ये भी पूछा है कि वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने के लिए कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा इस कैबिनेट के ऊपर, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि देखो कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट या फिर यूनिफॉर्म मोशन, कांस्टेंट मतलब कि यूनिफॉर्म मोशन में कब होता है, जब नेट फोर्स कितना होता है, 0, मतलब बैलेंस फोर्स एक्ट होता है। मैंने बताया था ना, बैलेंस फोर्स एक्ट होने से क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होता है या फिर रेस्ट में होता है, ठीक है। तो अगर बोला है कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब यूनिफॉर्म मोशन में होगा वो ऑब्जेक्ट, यूनिफॉर्म मोशन में लाने के लिए क्या होना पड़ेगा, नेट फोर्स क्या होना पड़ेगा, बैलेंस होना पड़ेगा, मतलब कि नेट फोर्स कितना होना पड़ेगा, 0। सो इसका मतलब कि फ्रिक्शनल फोर्स भी कितना होना पड़ेगा, 200 न्यूटन, okay, but in the opposite direction to the applied force. Okay, so if you simply write the frictional force will be equal to minus 200 न्यूटन। माइनस क्यों लिख दिया मैंने, बिकॉज यहाँ पे ये माइनस क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है, दैट इट इज दिस फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स बट एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। ओके, तब ये पॉसिबल है कि ये जो कैबिनेट है वो
कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11. In that question, what have been asked that two objects A and suppose B are moving in a straight line. Okay, they are moving in a straight line but opposite in direction. Both are moving with same speed. It is given in the question that they are already moving with, that means same velocities but in opposite direction. Each have a mass of mass is how much? 1.5 kg. Is it 1.5 kg and velocity is 2 meter per second. So its velocity is 2 meter per second. What is this? u1, u2 how much? Minus 2 meter per second. Why minus? Because u2 is opposite to u1. Okay, magnitude is same but velocities are acting in opposite direction. It have also mass 1.5 kg. So question is asked that whenever they will collide, okay, what happens? They stick together. वो लोग मतलब आपस में जुड़ जाते हैं और फिर साथ में मूव करेंगे ऑफ कोर्सली. अब मूव करेंगे कि नहीं वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन they will stick together and then what is the final velocity at that time? It have been asked in the question. Okay, so initial momentum we find initial ऐसे लिखते हैं momentum, total momentum before कोलिजन. मोमेंटम कोलिजन के पहले कितना होगा? P1 ले लेता हूँ, ठीक है. P1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? M1 U1 प्लस M2 U2, ठीक है. M1 U1 मतलब कितना है? 1.5 kg इंटू U1 इज हाउ मच? इट इज 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. प्लस M2 कितना है? 1.5 kg है और U2 कितना है? -2 मीटर पर सेकेंड. सो मीटर पर सेकेंड इज नॉट रिक्वायर्ड हेयर, so simply you write -2 and 2. Ultimately you will get how much? You get 0 meter per second, I mean 0 kg meter per second. Initial momentum is 0. Why it is 0? Because एज ए होल सिस्टम, पूरा सिस्टम अगर इसको हम एक सिस्टम की तरह देखें तो टोटल मोमेंटम क्यों होगा? क्या होगा? 0 होगा. क्यों? बिकॉज दोनों का वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में और मास सेम है, तो ओवरऑल देखा जाएगा तो इनिशियल मोमेंटम 0 होगा मैथमेटिकली. सेकंड, P2 मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज M2 V2 M1 V1 प्लस M2 V2, ठीक है. M1 और M2 सेम है तो क्या होगा? M इंटू वेलोसिटी. अब देखो ये दोनों ऑब्जेक्ट कॉम्बाइन हो जाएगा और कॉमन वेलोसिटी से मूव करेगा, ठीक है. कॉम्बाइन होने के बाद कॉमन वेलोसिटी से मूव करेगा. सो व्हाट यू गेट? M प्लस M1 प्लस M2 दोनों ही सेम ही है. सो सिंपली 2 into M into V. क्यों 2 into M? बिकॉज M1 प्लस M1 V MV प्लस MV, क्योंकि मास सेम है, वेलोसिटी भी कॉमन हो गया दोनों के केस में, ठीक है. तो वेलोसिटी कॉमन है तो मतलब कॉम्बाइन हो गया ना. सो दैट विल इट विल बी हाउ मच? 2 MV. सो टोटल बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन momentum, law of conservation of momentum. Okay, momentum before collision is equal to momentum after collision, P2. This implies P1 is already 0 and P2 is 2m into v. कितना हो जाएगा? So velocity v will be, because mass cannot be 0 and this 2 cannot be 0, so velocity will be how much? 0 मीटर पर सेकंड. मतलब कि फाइनल कॉमन वेलोसिटी जो होगा दोनों स्टिक हो जाने के बाद, जुड़ जाने के बाद साथ में मूव करेगा नो. बिकॉज इनिशियली पहले ही मोमेंटम 0 था तो फाइनली क्या मोमेंटम होगा? तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा? मतलब दोनों आया ऐसे टकरा के रुक जाएगा वहीं पे, ठीक है. सब मोमेंटम
कन्वर्ट हो जाएगा किसी और फॉर्म में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 इज easy, you can do it. The same question I had explained earlier in the index question also. So let us move to question number 13, that is important and based on law of conservation of momentum. Okay, so the situation is given here in the question that a hockey ball is struck by a hockey bat, okay, which was initially, that means the hockey ball was coming coming with a speed of how much? It was coming with this speed of initial velocity, I mean of 10 meter per second, like a straight line, in a straight line, and hockey was struck on the ball, okay, such that its velocity, मतलब जब हमने हॉकी से बॉल को मारा तो वेलोसिटी चेंज हो गया, कितना हो गया? फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड. But the question is that in the question it is given that the ball, after striking the ball started moving just opposite to the previous case. Opposite to the previous case. That means direction is just opposite. Okay. What I have to find is that how much momentum have been changed. That means बॉल का मोमेंटम कितना चेंज हुआ है, ठीक है, वो हमको फाइंड करना है. गिवन इनिशियल velocity of the hockey ball u is equal to 10 meter per second. Final velocity of the hockey ball is equal to v. I am writing it is v is equal to 5 meter per second. Okay. Therefore, how much momentum have been changed? So अगर मैं change in momentum की बात करूँ, therefore change in momentum, और यहाँ पे मास भी दिया है. हाँ, मास कितना है? m इज इक्वल टू 200 ग्राम, ठीक है, वो देख लेना है. 200 ग्राम है, उसको कन्वर्ट करोगे केजी में एसआई सिस्टम में, सो इट विल बी 0.2 kg, ठीक है. अभी चेंज इन मोमेंटम की बात करेंगे. चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. ओके, फाइनल मोमेंटम कितना होगा? m इंटू फाइनल मोमेंटम हो जाएगा. ओके, अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है, वेलोसिटी कितना है? v इज इक्वल टू -5. क्यों माइनस लिख रहा हूँ मैं? बिकॉज u ऐसे था इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जस्ट अपोजिट टू द इनिशियल वेलोसिटी, डायरेक्शन इज अपोजिट टू ईच अदर, देयरफॉर साइन इज माइनस. ओके, सो हियर इट विल बी v is -5 meter per second. Remember, minus, you put a minus sign here. Why it is? Because the velocity of the hockey ball after striking it is just opposite to the initial velocity. That's why I have put a minus sign. So final momentum is mass into velocity minus initial momentum, mass into initial velocity. ठीक है. अभी आ जाएगा 2 मास का, मास है 0.2 इंटू वेलोसिटी कितना है फाइनल? -5 -2 0.2 इंटू यू कितना है? 10. तो अगर आप लोग इसको करेंगे तो कितना मिल जाएगा? -1 और इधर -2 -3 मीटर. चेंज इन मोमेंटम है ना, तो kg मीटर पर सेकेंड. Okay, so this much momentum, that means -3 kg meter per second momentum have been changed. Of whose momentum have been changed? Of the hockey ball. Okay, next question is question number 14. In this question, what have been asked that, okay, the situation given, I have drawn it like simple diagram. A bullet of mass 10 gram, okay, which have been fired from a gun with an initial speed of 150 मीटर पर सेकेंड. बुलेट का स्पीड तो बहुत ज़्यादा होता है ना, सो 150 मीटर पर सेकेंड से
बुलेट एक फायर किया गया गन से, जो कि एक वुडन ब्लॉक में जाके लगा, ठीक है, वुडन ब्लॉक में यहाँ पे लगा, और उसके बाद वुडन ब्लॉक में वो अंदर थोड़ा घुसेगा ना, अंदर घुसे कुछ दूर बाद जाके रुक जाएगा वो बुलेट, ठीक है। तो वुडन ब्लॉक में यहाँ से यहाँ तक वो बुलेट जाके रुक गया, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी इतना तो रुक गया, तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 0, v = 0, ठीक है। अब क्वेश्चन में दिया है ये भी कि यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको टाइम कितना लगा, 0.3 सेकेंड, मतलब यहाँ से यहाँ तक पेनिट्रेट होने के लिए वुडन ब्लॉक में टाइम लगा 0.3 सेकेंड। तो पूछा है कि ये कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया है, वुडन ब्लॉक के अंदर कितना घुसा है वो, डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन यू हैव टू फाइंड, ओके। ऑल्सो it have been asked that what is the total that means opposing force applied by the wooden block, okay, to stop the bullet। मतलब वुडन ब्लॉक क्या करेगा, बुलेट को रोकेगा अंदर घुसने से, तो कुछ दूर तक तो घुस गया ना, तो अपोजिंग फोर्स कितना अप्लाई किया होगा वुडन ब्लॉक ने बुलेट के ऊपर, तो वो फोर्स पूछा है, ठीक है। हम लोग गिवन लिखते हैं, गिवन दैट मास ऑफ द बुलेट इज 10 ग्राम एंड यू कन्वर्ट इट इनटू kg, so how much it will be, 10 gram by 1000 kg, so it will be like 0.01 kg, पहला होगा। उसके बाद है इनिशियल वेलोसिटी u इज हाउ मच, 150 मीटर पर सेकेंड। तीसरा चीज़ दिया है हमको टाइम ऑफ पेनिट्रेशन इज 0.3 सेकेंड। चौथा चीज़ दिया है वेलोसिटी फाइनल 0, ऑफकोर्सली वो बुलेट रुक गया। उसके बाद निकालना है मुझे डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन और हाउ मच अपोजिंग फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द बुलेट एंड द वुडन ब्लॉक। सो F इज इक्वल टू वाट, सो वाट फॉर्मूला यूज, देखो मुझे फाइंड करना है S, तो मुझे ऑफकोर्सली 3 यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का जो इक्वेशन उन्हीं में से किसी को यूज़ करना पड़ेगा। तो उनमें से यूज़ करूँगा अगर, तो मान लो S = ut + ½ at स्क्वायर यूज़ किया, तो उसमें एक्सेलरेशन चाहिए होगा, डिस्टेंस तो निकल जाएगा लेकिन एक्सेलरेशन चाहिए होगा। या फिर v² - u² = 2s यूज करूँगा, उसमें भी मुझे क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन। वी नो दैट v = u + at फ्रॉम इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। 3 इक्वेशन है ना, उसमें से हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ से हम निकाल लेंगे a = v - u/t, v - u/t मतलब v0 - u कितना है, डिवाइडेड बाई 0.03, टाइम इज 0.03 है, सो 0.03। सो इफ यू सिंप्लीफाई दिस, हाउ मच यू विल गेट, -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस मच इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बुलेट, आई मीन डी एक्सेलरेशन। वाई माइनस साइन इज देयर, लुक माइनस साइन मतलब क्या है कि बुलेट का स्पीड वेलोसिटी कम हो रहा है, हर एक सेकंड में कितना हो रहा है, इतना वेलोसिटी 5000 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, मतलब डी एक्सेलरेशन हो रहा है, बुलेट का रिटार्डेशन हो रहा है। सो दिस मच इज द रिटार्डेशन वी हैव गॉट। नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड इज दैट वी हैव टू फाइंड नाउ व्हाट यू यूज, v² - u² इज इक्वल टू 2as। सो फ्रॉम हियर यू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन, मुझे निकालना है ना, डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन कितना हो जाएगा, v² - u² / 2a, ठीक है। v² - u² / 2a, तो 0² - u² मतलब u² मतलब हो जाएगा 150 × 150 बाय 2 इंटू एक्सेलरेशन -5000 न्यूटन, आई मीन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सो इफ यू cut it 1 2 1 2 and then 10, here it is, 5 10 55, 3 15, 2 15, 9/4, so 2.25. So 2.25 meter is the distance of penetration, because this minus got cancelled out, हाँ, v² माइनस था यहाँ पे, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा बिकॉज 0 का 0 हो जाएगा ना, तो मुझे मिल जाएगा 2.25 मीटर डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन। ना थर्ड क्वेश्चन इज दैट हाउ मच इज द रिटार्डिंग फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द बुलेट। जो ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक है, वो बुलेट के ऊपर कितना रिटार्डिंग फोर्स अप्लाई करेगा। सो
For that, third, this was first part, okay, first part, and this was second part. Retarding force on the bullet exerted by the wooden block is how much? F is equal to m into a. F is ऐसा m कितना है? मास ऑफ द बुलेट 0.01 kg इंटू एक्सलेशन है तुम्हारा -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो इट विल बी हाउ मच? 100 नीचे आएगा तो 2 जीरो खत्म हो जाएगा, बचेगा -50 न्यूटन. सो -50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेगा वुडन ब्लॉक किसके ऊपर? बुलेट के ऊपर, सो दैट इट विल स्टॉप पेनिट्रेटिंग द बुलेट. लेकिन फिर भी बुलेट कितना पेनिट्रेट कर गया? कितना मीटर? 2.25 मीटर पेनिट्रेट कर चुका था. ठीक है, तब जाकर वो रुक गया बुलेट. सो दिस इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है. इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते ही हैं. ठीक है.